Hello dear students, welcome back to the topic amines. We will continue with the nomenclature part of amines. We had seen earlier nomenclature classification of amines, then nomenclature of amines according to common name system, and now today we will take IUPAC nomenclature of amines. So IUPAC nomenclature. In this IUPAC nomenclature, primary amines are named by using parent alkane. The suffix e of an alkane. अब ये alkane लिया हमने, इसका suffix e of an alkane is replaced by the word amine. Hence we get here alkanamine. This is for primary amine. We get alkanamine. Alkanamine, alkane, if we take methane, replace E by the word amine, and we get methanamine. E को replace किया word amine से, we get methanamine. CH3NH2, according to common name system, it is methylamine. Two word name, common name, है ना? Two word हमने पढ़ा था, methylamine. Whereas IUPAC name will be methanamine. Methane, E drop किया, उधर क्या लगा दिया हमने? Word amine. We named it as methanamine. Similarly, we get ethane, propane, butane. If we take propane, then this will become propanamine. Propane, E drop किया और ये amine word आ गया propanamine. So 3 carbon propanamine, correct? CH3CH, CH3NH2. But now here this NH2 is at iso position. So we call it as isopropanamine, propanamine, common name. Now IUPAC name में क्या करेंगे आप? अपना लॉजिक जो सिंपल है, select the longest continuous carbon chain and that is alkane, is propane. Okay, so alkane is propane और ये प्रोपेन में NH2 की पोजीशन कहाँ है? सेकेंड कार्बन पे. E ड्रॉप करेंगे, प्रोपेन टू अमाइन, प्रोपेन टू अमाइन. सो ये नेक्स्ट रूल हो गया अभी हमारे लिए. द पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय प्रॉपर नंबर. सो हियर व्हाट वी हैड सीन, द पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप is on the second carbon of propane chain. Propane chain के second carbon पे NH2 group. तो क्या हो गया? Propane to amine. Okay. It is a primary amine. Okay. It is not a secondary amine because primary amine is NH2. Now next rule अब क्या बोलता है? If two or more amino group in a single molecule, है ना? जैसे एग्जाम्पल नेक्स्ट वाले में देख रहे हैं हम लोग, 2 or more amino group in a single molecule, then what we do, then prefix di, tri, tetra can be used
विथ प्रॉपर नंबर, है ना, विथ प्रॉपर नंबर। अब एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप है तो उनकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, नंबर भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए ये थर्ड वाला एग्जाम्पल में 2 अमाइनो ग्रुप है। अब 2 अमाइनो ग्रुप है तो डाई अमाइन लिखने वाले हैं हम लास्ट में, है ना। डाई अमाइन की पोजीशन क्या होगी, 1 2 डाई अमाइन। और हाउ मेनी टोटल कार्बन, 2 कार्बन। सो इसका नोमेनक्लेचर IUPAC में पहले लिखूं तो क्या होगा, इथेन होगा, इथेन 1 2 डाई अमाइन। अच्छा, जब ये 2 NH2 ग्रुप, ये whenever we get 2 or more NH2 ग्रुप, है ना, 2 या 2 से ज्यादा NH2 ग्रुप आएंगे तो अमाइन का, ये अल्केन का E ड्रॉप नहीं होगा, E will be maintained as it is। जैसे ये 2 कार्बन है तो हम हमारी प्रैक्टिस में क्या लिखेंगे, इथेन लिखेंगे। अब वोवेल से आ रहा है तो हम क्या करते हैं, E ड्रॉप करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, 2 NH2 ग्रुप है, सो दिस E शुड बी मेंटेन्ड। इथेन 1 2 डायमाइन, इथेन 1 2 डायमाइन, IUPAC नोमेनक्लेचर। ये एक और एग्जांपल देख लो, एग्जांपल नंबर 5। यहां भी 2 अमाइनो ग्रुप है। हाउ मेनी टोटल कार्बन, 4 कार्बन इज ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, एन लगा दिया। पोजीशन ऑफ 2 अमाइनो ग्रुप, तो ये डाई अमाइन है, पोजीशन क्या होगी, 1 4, ब्यूटेन 1 4 डाई अमाइन, ब्यूटेन 1 4 डाई अमाइन। So what is the point? If 2 or more amino group present in a single molecule, then what we use, prefix di, tri, tetra can be used with proper number. And what more we have to remember, that ending E of alkane should be retained. पहले हम ending E को ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जब डायमाइन आ गया तो हमने एंडिंग, जैसे इथेन का E मेंटेन किया, ब्यूटेन का E मेंटेन किया, that has to be retained and we name it as butane 1,4 diamine। अब इसी कंपाउंड का आप कॉमन नेम क्या लिखेंगे, इसी कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन ब्यूटाइल डायमाइन, है ना, तो ब्यूटाइल डायमाइन। ओके, नाउ ये रह गया अभी हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। उसके लिए आते हैं। तो अब एरोमेटिक अमाइन में क्या होगा, दिस इज अगेन अ प्राइमरी अमाइन। अब ये अमाइन प्राइमरी अमाइन एंड इट इज बॉन्डेड विद अ बेंजीन रिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेंजीन का E ड्रॉप कर देंगे, बेंजीन का E ड्रॉप करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर आप, बेंजीन का E ड्रॉप करेंगे, ये E ड्रॉप हुआ बेंजीन का, और ये बेंजीन अमाइन, व्हाट वी कॉल दिस एज बेंजीन अमाइन। और कॉमन नेम आप सभी को मालूम है, एनिलीन। सो दिस इज हाउ वी कैन नेम। कॉमन नेम ऑफ दिस एग्जाम्पल नंबर 3 हमने IUPAC समझ लिया था। कॉमन नेम क्या आ जाएगा, इथाइल डायमाइन, इथाइल डायमाइन, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथाइल डायमाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ रहे हैं हम, प्राइमरी अमाइन का कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC। कॉमन नेम मैंने आपको पढ़ा दिया था, अभी एग्जाम्पल में कॉमन नेम भी लिख रहा हूं मैं और IUPAC एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। तो यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर प्राइमरी अमाइन में क्या करते हैं, ending E of alkane is replaced by the word amine, hence it becomes alkanamine, methanamine, ethanamine, propanamine, butanamine, like that pentanamine, it goes for primary amine. The position of amino group, if it is not terminal, then it should be mentioned. तो जैसे यहाँ पर IUPAC में 3 कार्बन but NH2 is bonded to second कार्बन, ये प्राइमरी अमाइन है, E ड्रॉप किया, 3 कार्बन प्रोपेन 2 अमाइन इज द नोमेनक्लेचर। हियर
2NH2 group ethyl diamine is the common name. बट IUPAC ने में क्या किया, 2 कार्बन इथेन ई को मेंटेन किया और डायअमाइन प्रीफिक्स लगाया, बट द पोजीशन मस्ट बी मेंटेन. तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे अमाइनो ग्रुप है तो हमने वो लगा दिया. फिफ्थ कार्बन फिर से देखेंगे, फिफ्थ एग्जांपल देखेंगे, सेम है एज इक्विवेलेंट टू थर्ड एग्जांपल, ओनली द कार्बन चेन इज लिटिल लॉन्गर. सो टोटल कार्बन 4, तो ब्यूटेन ई मेंटेन किया. 2NH2 ग्रुप डायअमाइन, पोजीशन 1 and 4, तो ब्यूटेन 1,4 डायअमाइन इज द नोमेनक्लेचर. एरोमेटिक अमाइन के लिए आ गए. अब आप एरोमेटिक अमाइन में आपने क्या किया कि अगर NH2 ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग है, सो व्हाट वी डू हियर, वी रिमूव E फ्रॉम बेंजीन. अरीन है ना, तो बेंजीन का E ड्रॉप किया और उसके जगह आपने बेंजीनमाइन नोमेनक्लेचर लिखा. and aniline is the common name. It is accepted by IUPAC system also, aniline. Now coming to example number 6. Example number 6 में क्या है, NH2 ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप, both are bonded to बेंजीन रिंग. तो ये अगर ये रहा बेंजीन रिंग के साथ CH3, तो क्या कहते हैं हम इसे, टॉलीन. और टॉलीन के साथ में NH2 ग्रुप आ गया तो इसे क्या कहेंगे, टॉलिडीन. ओके, सो इट इज टू बी कॉल्ड एज टॉलिडीन. एंड IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा ये बोल सकते हैं आप. ये फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी कार्बन की, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. तो 4 मिथाइल बेंजीनमाइन, 4 मिथाइल बेंजीनमाइन विल बी द नोमेनक्लेचर. तो 4 मिथाइल आ गया और फिर बेंजीनमाइन, बेंजीनमाइन, 4 मिथाइल बेंजीनमाइन. ओके, तो IUPAC में. नाउ नंबर 7. Number 7 is interesting. Again it is a primary amine, NH2. But now what is the change? This is not a benzene. This is साइक्लोहेक्सेन, है ना, डबल बॉन्ड नहीं है ऑल्टरनेट, तो ये है साइक्लोहेक्सेन. और साइक्लोहेक्सेन है तो इसका नोमेनक्लेचर, अब क्या करेंगे हम साइक्लोहेक्सेन के लिए, नोमेनक्लेचर में क्या जाएंगे, साइक्लोहेक्सेनमाइन. हेक्सेन है, ई ड्रॉप करेंगे, साइक्लोहेक्सेन. हेक्सेन देखिए ई ड्रॉप कर रहा हूं मैं और उसकी जगह क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेनमाइन. अब कॉमन नेम में क्या आ जाएगा उसका कॉमन नेम, साइक्लोहेक्सिलमाइन, साइक्लोहेक्सिलमाइन, साइक्लोहेक्सिलमाइन. So this is the nomenclature for primary amine. देखिए almost all varieties we have covered. नॉर्मल लिया, फिर NH2 की पोजीशन अलग आ गई, देन 2NH2 ग्रुप आ गए, देन NH2 ग्रुप प्राइमरी अमाइन बॉन्डेड टू एरोमेटिक रिंग, प्राइमरी अमाइन बॉन्डेड टू नॉन एरोमेटिक रिंग, है ना, साइक्लो एलिसाइक्लिक कंपाउंड के जैसा है ये, और उसमें NH2 अटैच किया. एंड दिस इज व्हाट ऑल प्राइमरी अमाइन एग्जांपल. नाउ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, दिस nomenclature is very very important. सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन में हमको क्या करना होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में हम को थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि इसमें मिक्स अमाइन भी आता है और सिंपल अमाइन भी आता है. बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन कैन बी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल. क्लासिफिकेशन में देखा था, अमाइन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन. अब सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में क्या होता है, सेकेंडरी इज हैविंग 2 अल्काइल और अराइल ग्रुप which may be similar or different. अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आ गए तो आपको क्या करना होगा, नोमेनक्लेचर में ध्यान रखना होगा, R is not equal to R dash, है ना, और एक इसमें क्या होगा, R is equal to R dash. तो ये रहेगा आपका अनसिमेट्रिकल.
और ये रहेगा सिमेट्रिकल, जिसको हम सिंपल बोलते हैं सिमेट्रिकल को, और इसे कहते हैं मिक्स अमाइन। दिस विल बी नेम्ड एज मिक्स अमाइन। तो ये सेकेंडरी का हो गया। ऐसा ही टर्शियरी में भी पॉसिबल होगा कि यहाँ पर R डैश R डबल डैश, R कैन बी इक्वल टू R डैश, कैन बी इक्वल टू R डबल डैश, R कैन बी equal to R dash but cannot be equal to R double dash, R cannot be equal to R dash but cannot be equal to R double dash, और R cannot be equal to R dash और equal to R double dash। सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। करेक्ट है। अब ये अगर तीनों एक जैसे हो गए तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल। अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये हो जाएंगे मिक्स, तीनों भी एग्जाम्पल, ऑल दीज आर मिक्स अमाइन। तो ये सब पढ़ लिया था हमने। अब हमें इनके नोमेनक्लेचर करना। अगर सिंपल सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन है, यहां से शुरू कर, सिंपल सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, सिंपल सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, ये एग्जाम्पल नंबर 8 को देखेंगे आप। ये सिंपल सेकेंडरी अमाइन है। Secondary amine functional group characterized by the presence of NH, है ना। NH ग्रुप ये सेकेंडरी अमाइन ग्रुप है, और ये सेकेंडरी अमाइन NH को हम यूज करेंगे डिफरेंट तरीके से। यहाँ पर ये सेकेंडरी अमाइन के स्ट्रक्चर हो गए। इट इज नेम्ड एज इमीन, है ना। सेकेंडरी अमाइन NH इज नेम्ड एज इमीन। और टर्शियरी में क्या होता है, टर्शियरी नाइट्रोजन एटम, है ना। टर्शियरी अमाइन में ये टर्शियरी अमाइन हो गया, तो ये यहाँ सेकेंडरी अमाइन पढ़े हमने, तो ये टर्शियरी अमाइन करेक्ट है। टर्शियरी अमाइन में नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट है, टर्शियरी नाइट्रोजन। सो कमिंग बैक टू सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन which are simple. If they are simple, then prefix di for secondary and tri for tertiary can be used. जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर 8, CH3CH3NH डाई मीथेनमाइन, 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाई मीथेनमाइन, वी नेम इट एज डाई मीथेनमाइन। मीथेन का ई ड्रॉप किया हमने, मीथेन का ई ड्रॉप किए और उसके जगह अमाइन वर्ड आ गया, तो डाई मीथेनमाइन। करेक्ट है, डाई मीथेनमाइन। टर्शियरी अगर सिंपल रहेगा तो एग्जाम्पल नंबर क्या बनता है, एग्जाम्पल नंबर 12 बनता है। करेक्ट है। ये टर्शियरी यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 12, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल ग्रुप है, सो ट्राई मीथेनमाइन, सिंपल है, ट्राई मीथेनमाइन, ट्राई मीथेनमाइन, ट्राई मीथेनमाइन। तो इफ amines are, if simple secondary and tertiary amine, then prefix di for secondary and tri for tertiary will be applied here. जैसे मैं एग्जाम्पल बना लूँ यहाँ पर C2H5 2 times NH secondary amine, C2H5 3 times N tertiary amine। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, ये सेकेंडरी है तो डाई इथेनामाइन, ये क्या होगा ट्राई इथेनामाइन, इथेन रिपीट हो रहा है 2 बार तो डाई इथेनामाइन, 3 बार रिपीट हो रहा है तो ट्राई इथेनामाइन। सो सिंपल अमाइंस अगर रहेगा तो आपको प्रीफिक्स डाई ट्राई लगाना होगा। अब हमें जो एग्जाम में पूछने वाले एग्जाम्पल्स होते हैं अमाइन से रिलेटेड, वो होते हैं मिक्स्ड सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल जिसको हम कहते हैं, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। इसमें क्या नोमेनक्लेचर में ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल मैं यहां ले लेता हूं, आई टेक C3H7
NHCH3. Now here this is a secondary mixed secondary amine. One methyl group and one propyl group are bonded to this nitrogen which is secondary in nature. So ये methyl और ये propyl. तो कॉमन नेम लिखने के लिए क्या लिखेंगे आप? मिथाइल प्रोपाइल अमाइन. मिथाइल प्रोपाइल अमाइन हो गया कॉमन नेम. बट IUPAC नेम लिखना होगा तो क्या करेंगे कि आउट ऑफ दिस टू द बिगर अल्काइल ग्रुप है ना, एक स्मॉलर है और एक बिगर है. स्मॉलर क्यों है? बिकॉज ओनली वन कार्बन. बिगर क्यों है? बिकॉज इट इज हैविंग 3 कार्बन. द लार्जर और बिगर अल्काइल ग्रुप इज कंसिडर्ड एज पेरेंट अल्केन. बिगर अल्काइल ग्रुप, प्लीज ध्यान देंगे आप, बिगर अल्काइल ग्रुप इज कंसिडर्ड एज पेरेंट अल्केन. और पेरेंट अल्केन अगर आ गया तो आप क्या करेंगे? उसका अल्केन अमाइन. अल्केन को आप काय में कन्वर्ट करने वाले हो? अल्केन अमाइन में. ये तो पहले ही सीख लिया हमने. तो यहां पर बिगर अल्काइल ग्रुप क्या है? प्रोपेन. तो आप प्रोपेन को क्या करेंगे? प्रोपेनामाइन कर दिया आपने. नाउ दिस इज प्रोपेनामाइन and it is having this smaller alkyl group as a substituent on nitrogen. तो पहला पॉइंट क्या लिखा आपने? बिगर अल्काइल ग्रुप इज कंसिडर्ड एज पेरेंट अल्केन एंड विच विल बिकम अल्केनामाइन. नंबर 2, लोअर अल्काइल ग्रुप considered as नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूएंट है ना. सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूएंट है. कैपिटल N लिखना है हमको यहाँ पर. तो लोअर अल्काइल ग्रुप इज ए सब्स्टिट्यूएंट ऑन नाइट्रोजन. तो क्या होगा ये? N मिथाइल प्रोपेनामाइन. N मिथाइल प्रोपेनामाइन. N नाइट्रोजन का है तो कैपिटल N मिथाइल प्रोपेनामाइन. N मिथाइल प्रोपेनामाइन. Are you getting this? N मिथाइल प्रोपेनामाइन. It is a secondary amine. कॉमन नेम तो बहुत इजी था. मिथाइल प्रोपाइल अमाइन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिए followed by the word amine. बट IUPAC में आपको सिलेक्ट करना है स्मॉलर ग्रुप कौन सा है और बिगर ग्रुप कौन सा है. द स्मॉलर विल बी कंसीडर्ड और लोअर विल बी कंसीडर्ड एज N सब्स्टिट्यूएंट. तो N सब्स्टिट्यूएंट ये मिथाइल ग्रुप जो है स्मॉलर ग्रुप है, नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूएंट है. और पेरेंट कंपाउंड क्या बना मेरा यहाँ पर? पेरेंट कंपाउंड बना प्रोपेनामाइन है ना. पेरेंट कंपाउंड इज प्रोपेनामाइन. तो हम क्या लिखेंगे? N मिथाइल प्रोपेन का E ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर ये अमाइन लिख देंगे. तो क्या बन गया ये? N मिथाइल प्रोपेनामाइन. तो ये हो गया मिक्स सेकेंडरी अमाइन. सेम लॉजिक मिक्स टर्शियरी अमाइन में. मिक्स टर्शियरी अमाइन का एग्जांपल ये लेते हैं C3H7 NCH3 और ये C2H5. चलिए जी, मिक्स टर्शियरी अमाइन. मिक्स टर्शियरी अमाइन तो क्या दिख रहा है अपने को? ये बिगर ग्रुप है तो ये बना प्रोपेनामाइन. और ये दोनों स्मॉलर है तो ये दोनों आ गए नाइट्रोजन पे. तो क्या लिखेंगे? N इथाइल N प्रोपाइल N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनामाइन. करेक्ट है. तो ये याद रखो बच्चों लोग कि जब भी मिक्स और अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन आएगा तो जो हाइयर अल्काइल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा?
पेरेंट अल्केन और अल्केन का बनेगा अल्केनामाइन। और जो लोअर अल्काइल ग्रुप होंगे, स्मॉलर ग्रुप जो होंगे, दे आर नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूएंट। चलिए ये दोनों लॉजिक को अब सेकेंडरी और टर्शियरी में अप्लाई करते हैं। और कॉमन नेम तो बहुत इजी रहेंगे, जैसे यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप NH सेकेंडरी अमाइन है, ये डाई मिथाइल अमाइन, नोमेनक्लेचर विल बी डाई मिथाइल अमाइन। बट IUPAC में क्या करना होगा आपको, डाई मीथेन अमाइन, ये हमने यहाँ पर लिख के रखा डाई मीथेन अमाइन। नेक्स्ट CH3 CH2 NH CH3। अब ये मिक्स हो गया, एक है इथाइल और एक है मिथाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कॉमन नेम आ जाएगा इथाइल मिथाइल अमाइन। IUPAC अप्लाई करो, ये है IUPAC, है ना। IUPAC में जो बड़ा है वो क्या रहेगा, पेरेंट, जो स्मॉलर रहेगा वो उस पे डिपेंडेंट, उससे अटैच हो जाएगा। तो अटैच कैसे होता है, नाइट्रोजन से होता है, कार्बन से नहीं। इसीलिए नंबर 1 2 3 नहीं आएगा, क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा। तो जो बड़ा है वो क्या रहेगा, पेरेंट अल्केन। करेक्ट है। तो फिर से एग्जाम्पल पे आ जाइए, क्या है एग्जाम्पल, CH3 CH2 NH CH3। हाइयर देखिए, मैं एनसर्कल करता हूं, ये बिगर ग्रुप है इथेन, ये स्मॉलर है मीथेन, तो ये मिथाइल बन गया। कैसे अटैच रहेगा, नाइट्रोजन से। तो नोमेनक्लेचर क्या बनेगा, N मिथाइल इथेनमाइन, N मिथाइल इथेनमाइन। ई ड्रॉप करके लिखना है हमको, है ना, N मिथाइल इथेनमाइन। अब ये नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, C6H5 C6H5NH C6H5। तो आप इसे कॉमन नेम के लिए क्या लिख देंगे, अब आप डाइफिनाइलमाइन, यू कैन राइट दिस एज डाइफिनाइलमाइन। तो ये बन जाएगा डाइफिनाइलमाइन। अब IUPAC नेम क्या लिखेंगे इसका, N फिनाइल बेंजीनमाइन, N फिनाइल बेंजीनमाइन। बेंजीन का ई ड्रॉप होगा, बेंजीनमाइन, N फिनाइल बेंजीनमाइन। आई होप दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा आपको वाइडन फॉर्मेट में इसको देखना पड़ेगा, है ना, समझ जाएगा आई थिंक, है ना। नाउ नेक्स्ट सेकेंडरी अमाइन है डाइफिनाइल अमाइन। अब IUPAC में क्या लिखेंगे, एक ग्रुप को नाइट्रोजन से अटैच कर दो और एक को पेरेंट बना दो, तो वो बन गया N फिनाइल बेंजीनमाइन। N फिनाइल बेंजीनमाइन is the nomenclature. Now next number 11। अब ये क्या है, एक एरोमेटिक रिंग है यानी फिनाइल ग्रुप, और ये CH3 ग्रुप। तो कॉमन नेम क्या होगा, फिनाइल और मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, M पहले आएगा P बाद में आएगा, तो मिथाइल फिनाइल अमाइन, मिथाइल फिनाइल अमाइन, मिथाइल फिनाइल अमाइन आ गया, मिथाइल फिनाइल अमाइन। ओके, अब इसी का IUPAC नेम क्या लिखेंगे हम, मिथाइल फिनाइल अमाइन। बड़ा ग्रुप कौन सा है, बेंजीन वाला, है ना, और छोटा ग्रुप कौन सा है, ये CH3, तो N मिथाइल बेंजीन अमाइन। जैसा N फिनाइल लिखा था, ये लिखेंगे N मिथाइल बेंजीनमाइन, N मिथाइल बेंजीनमाइन, N मिथाइल बेंजीनमाइन। तो ये हो गए बेटा सब सेकेंडरी अमाइन के।
अब आते हैं टर्शियरी अमाइन के लिए, ठीक है। टर्शियरी अमाइन CH3 थ्राइस N, तो इसे हमने लिखा था ट्राइमिथाइलमाइन, ट्राइमिथाइलमाइन कॉमन नेम होगा ट्राइमिथाइलमाइन। और इसी का IUPAC नेम नोमेनक्लेचर ट्राइमीथेनामाइन, ट्राई मीथेन, 3 मिथाइल ग्रुप है तो ट्राइमीथेनामाइन, आइडेंटिकल। नेक्स्ट नंबर 13, नंबर 13 में क्या है, ये तो एग्जाम्पल यहीं पर लिखा हुआ है, C2H5 CH3 C3H7, तो तीनों डिफरेंट ग्रुप है। थोड़ा स्पेस कम होने से थोड़ा क्लमजी जैसा दिख रहा है, क्लमजी हो गया है, ये नाइट्रोजन है, करेक्ट है। तो C2H5N CH3 C3H7, लार्जर ग्रुप प्रोपेन, तो प्रोपेनामाइन। CH3 नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, C2H5 नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, N-इथाइल N-मिथाइल प्रोपेनामाइन, N-इथाइल N-मिथाइल प्रोपेनामाइन। और कॉमन नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन, क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, तीनों लिखने का है। और सेकेंड वर्ड क्या आ जाएगा, अमाइन, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। ओके, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को मैं यहां लिख लेता हूं, नीचे इतना दिखेगा नहीं आपको प्रॉपर। तो एग्जाम्पल नंबर 14, 15 एंड 16, 14, 15 एंड 16। तो 14 एग्जाम्पल नंबर 14, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया। तो 14, 15 एंड 16 इसको हम समझते हैं यहाँ पर। तो ये बना हमारा बेंजीन रिंग, then what is there, N CH3 2 times, यानी ये CH3 2 times है, तो वो 2 times को मैं कैसे ब्रेक कर लूंगा, ये CH3 नाइट्रोजन से हो गया, CH3 2 times है तो एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पर। अब कॉमन नेम और IUPAC नेम, तो पहले IUPAC पढ़ते जो ज़्यादा साइंटिफिक है, तो हम इसको नंबर 14 का साइंटिफिक नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, NN डाइमिथाइल होगा क्या बेटा, देखो तो NN डाइमिथाइल बेंजीनमाइन, बेंजीन का E ड्रॉप किया और ये अमाइन लिख दिया, NN डाइमिथाइल, स्मॉलर ग्रुप है, नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, NN डाइमिथाइल बेंजीनमाइन। अब इसका कॉमन नेम बोलो तो क्या लिखेंगे हम, इसका कॉमन नेम क्या लिखना चाहिए, डाइमिथाइल एनिलीन, कॉमन नेम क्या होगा, डाइमिथाइल एनिलीन, एनिलीन इज द कॉमन नेम, डाइमिथाइल एनिलीन is the common name, and N dimethyl benzenamine is the IUPAC name for example number 14. एग्जाम्पल नंबर 15 को देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15। अब ये आ गया बेंजीन रिंग और लिखा है CH2, ओके, CH2NH2। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट नोमेनक्लेचर हो गया ना, CH2NH2, इसको थोड़ा समझ के लिखते हैं हम लोग। पहले इसका कॉमन नेम लिखते हैं, यहाँ पर ऊपर में कॉमन नेम लिखते हैं। तो कॉमन नेम क्या होगा, दिस इज बेंजाइल ग्रुप, है ना। NH2 इज नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 11 में दिख रहा है, या फिर यहाँ नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से जो अटैच है, NH2 ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, तो ये एनिलीन नहीं होगा, ये है बेंजाइल ग्रुप,
BENZYL. Benzyl amine is the common name. Benzyl amine is the common name. अब IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम में दिस विल बी द पेरेंट कंपाउंड, और ये बेंजीन रिंग है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ इसका IUPAC नेम बनेगा फिनाइल मीथेनामाइन. फिनाइल मीथेनामाइन. ये एग्जाम्पल को मार्किंग करके रखेंगे आप, है ना. फिनाइल मीथेनामाइन, बिकॉज ये देखिए मीथेनामाइन बन रहा है यहाँ से, CH2NH2 है. आप अगर बेंजीन रिंग नहीं लगाएंगे तो क्या बनेगा? CH3. तो बना ये मीथेनामाइन. अब मीथेन का एक H निकाल के फिनाइल का सब्स्टिट्यूशन है. सब्स्टिट्यूशन कार्बन पे है, नाइट्रोजन पे नहीं है. हटके है एग्जाम्पल, है ना, हटके है, तो जरा सा हटके आप इसे ध्यान में रखेंगे. तो क्या नाम बना इसका? फिनाइल मीथेनामाइन. फिनाइल मीथेनामाइन इज द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस IUPAC नंबर 15. अब नंबर 16 को लिखते हैं हम, है ना. नंबर 16 को देखते हैं, और ये तो बहुत सिंपल है, ये आप सभी को आ जाएगा. नंबर 16 थोड़ा हटके है. इन व्हाट सेंस? अब आप देख लो यहाँ पर, इजीली यू कैन से कॉमन नेम ऑफ इट. अच्छा, ये कौन सा टाइप का अमाइन है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? ये प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि NH2 ग्रुप है, तो ये प्राइमरी अमाइन है, NH2 ग्रुप है, तो ये ध्यान में रखेंगे. इसमें अब हम तो कॉमन नेम क्या लिखेंगे? ये पैरा पोजीशन पे है, पैराक्लोरो एनिलीन. पैराक्लोरो एनिलीन. NH2 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ना एनिलीन. ये देखो नंबर 4 में NH2 ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग इज एनिलीन, और ये पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर, तो पैराक्लोरो एनिलीन इज द कॉमन नेम. अब इसी का IUPAC नेम देखना है अपने को. तो IUPAC नेम में क्या करेंगे? इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी अपने को, है ना. इसकी पोजीशन क्या बताएंगे हम? ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन. फोर्थ कार्बन इज हैविंग क्लोरो, तो 4-क्लोरो बेंजीनमाइन. 4-क्लोरो एनिलीन का नाम क्या लिखा है आपने? बेंजीनमाइन. 4-क्लोरो बेंजीनमाइन. बेंजीन. 4-क्लोरो बेंजीनमाइन. ई ड्रॉप करेंगे एंड बेंजीनमाइन. इसको IUPAC नेम 4-क्लोरो बेंजीनमाइन, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं 4-क्लोरो एनिलीन, बिकॉज एनिलीन इज एक्सेप्टेड बाय IUPAC सिस्टम. तो आज हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज को पढ़ा है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है और हमें याद होना चाहिए. हमने क्या किया? ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एक्सेप्ट एग्जाम्पल नंबर 6, ये प्राइमरी वाला यहाँ डिलिबरेटली अलग से पढ़ा था हमने. तो कॉमन नेम अल्काइल अमाइन, IUPAC नेम अल्केनामाइन फॉर प्राइमरी अमाइन. मिक्स सेकेंडरी और टर्शियरी रहेगा, तो हायर अल्काइल ग्रुप विल बी कंसिडर्ड एज पेरेंट अल्केन, while lower alkyl group are considered as substituent. तो ये मिथाइल N मिथाइल इथेनामाइन, N मिथाइल इथेनामाइन, करेक्ट है. और ये एग्जाम्पल टर्शियरी का नंबर 13, जिसमें 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, मिक्स है, तो यहाँ क्या करेंगे कि हायर ग्रुप है प्रोपेन, तो प्रोपेनामाइन. नाइट्रोजन पे मिथाइल है, नाइट्रोजन पे इथाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया, N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनामाइन. दिस विल बी द नोमेनक्लेचर. और कॉमन नेम तो क्या है? मिथाइल इथाइल प्रोपाइनामाइन, लाइक दैट. एरोमेटिक में क्या याद रखेंगे आप? दिस इज द फर्स्ट प्राइमरी अमाइन का एरोमेटिक एग्जांपल, NH2 डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग. कॉमन नेम इज एनिलीन एंड IUPAC नेम इज benzinamine. So this is all about nomenclature.
we will take in next lecture the methods for the preparation of amines. Okay, then see you in the next class. Thank you very much.